Hello, students. Good morning. Today, we are going to discuss the novel Middlemarch. And before discussing summary of Middlemarch, I would like to tell you that this story or novel is written by George Eliot. Actually, George Eliot is her pen name, and her real name was Mary Ann Evans. But it was the time then females were not taken seriously, and in fact females were not much free to write, and that's why this author had to change her name, and then she wrote. Yes, but that's a story is actually a Middlemarch. That's a fictional town, and which is created by George Eliot. Like R.K. Narayan, he had created Malgudi, right? That's a place which was imaginary place and created by R.K. Narayan. Similarly, Thomas Hardy had created Wessex. So some of the authors they have created one place and then they deal with uh, the story and characters from the imaginary place. So here the same author authors like a whole story takes place in the middle march. So that's which is England, which is situated in England, right? So now, what's the story? So story is just we can say that there are a baby born, and then newborn baby understands. He recognizes, uh, first of all he recognizes mother, then father, then the people around him or her, and then friends, then colleagues and all. So whole life we meet so many people. Similarly in Middlemarch there are, it's a it's a city like Indore or other city. So when we born, then our our area is limited, but then in our whole life we meet so many persons. So that one baby is born here in one like uh, in one home. So that's a 4 5 children, 10 children. They born in their home, but then one day they meet, and then in other words we can say that there are 4 5 like couples. They so this is a story of different couples, how relations establish, how relations spoil, what's a marriage institution, something like that. So interesting story. And in middle march अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग आ रहे हैं और कैसे लाइफ मूव होती है. दिस वे दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय George Eliot. So here that's a little bit this the plot of this story is little bit complicated because the number of characters and families are there, right? So I am going to tell you, and I'm going to make one good like systematic video, but this time I'm just reading through text, and I would like to tell you that uh, you may confuse. That's why in the beginning, just imagine there are one key family in this novel, that is Brooks family, and then Brooke family, where who lives, that's a uncle, Uncle Brooke. He's a bachelor and unmarried, and he takes care of two girls, Dorothea Brooke and
Celia Brooke, their sister. Dorothea is elder, and Celia is younger sister. They all live together. So this is a one family. Another family is that's a Vinci family, right? So Fred Vinci and mother father they live in one family. Then Garth family where Caleb Garth, right, and Mary Garth they live together. So and then other family, Bulstrode family and all. So one by one, I told you in the beginning, please set your mind that in this story, number of characters are there and plot is complicated. But the story is very good. At the end, we understand what's the relation, uh, all families like how they are connected. Okay, so see what's the story. Okay, Middlemarch is a novel of contrast and parallels, right? The two main storylines of Lidget and Dorothea unfold in parallel, and both of them becoming trapped in unhappy marriages. However, their reactions to the realities of their situations are different. So यही इसकी ब्यूटी है, क्योंकि इसमें मैरिजेस उनके रिएक्शंस जो है वो बहुत अलग है, अनएक्सपेक्टेड है. तो हम यहाँ देखेंगे कि स्टोरी में क्या है, राइट. चलिए देखते हैं. This is actually analysis, so we will analyze it later on. First, uh, we have to discuss the story, right? So that is some okay. Middlemarch. Okay. Now, as I told you, that's the Brooke family is important here. That's a key family in this novel. Dorothea is a heroine of the novel. So Dorothea and Celia are two Middlemarch sisters of marriageable age. Dorothea chooses Casaubon, a dried up old scholar, for her husband, much to everyone's dismay. Why? Because Dorothea uh, wants to get married, and as she expresses, and then other family members are very much disappointed because uh, Casaubon is 45 years old man and not interesting personality, very much reserved and different kind of difficult nature होता है उसका. And on the other hand, Dorothea is just 19 and intelligent girl, very beautiful as well. तो वो उसके जब सिस्टर को और उसके अंकल को पता चलता है कि ये कैसाबॉन से मैरिज करना चाहती है, तो वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं. एनीवे, अब यहाँ सीलिया जो है वो सीलिया मोर सेंसिबल एंड चूजेस सर जेम्स चैथम. वो प्रैक्टिकल है, सेंसिबल है, और वो जेम्स चैथम को अपने मतलब उससे शादी करने के लिए उसको पसंद करती है. अ लोकल नोबलमैन हु वांटेड टू मैरी डोरोथिया, ये एक अच्छा पर्सन है जो डोरोथिया से शादी करना चाहता है. बिफोर शी टर्न हिम डाउन, है ना. सीलिया एंड मिस्टर ब्रूक, ब्रूक डोरोथियाज अंकल, मिस्टर ब्रूक डोरोथिया के अंकल हैं, ट्राई टू काउंसिल हर अगेंस्ट मैरी कैसेबॉन, राइट. तो ये जब कैसेबॉन से शादी करना चाहती है, तो ये मना करते हैं इसके अंकल और सीलिया की, उससे शादी मत करो. दो शी विल नॉट लिसन, वो सुनती नहीं है. एंड डोरोथिया लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ एजुकेटेड एंड शी वॉन्ट्स टू लर्न.
दो द मैरिज इज़ अ टोटल मिस्टेक, और वो कर लेती है और फिर बहुत पछताती है. डोरोथिया इन कैसेबॉन get married. Casaubon hopes for someone to comfort and serve him. ऑन द अदर हैंड कोस्ट कैसेबॉन क्या करता है, वो सिर्फ इसलिए शादी करता है क्योंकि उसको एक असिस्टेंट चाहिए. तो एंड डोरोथिया वॉन्ट्स टू बी ऑफ यूज़ इन हिज वर्क. जबकि डोरोथिया सोचती है कि ये एक्चुअली कैसेबॉन एक बुक लिख रहा है, द की ऑफ पैथोलॉजी. तो वो सोचता है कि ये बुक, इतना इंटेलिजेंट पर्सन है तो मैं भी इसके साथ काम करूँगी, मुझे भी मज़ा आएगा. लेकिन ये क्या करता है कि ये तो कुछ उसको इन्वॉल्व ही नहीं करता डोरोथिया को अपने काम में. ऑन द अदर हैंड वो सोचता है कि डोरोथिया इज़ यूजलेस पर्सनैलिटी, एक वाइफ की तरह रहे, लेकिन बाकी उसका कोई, वो अपनी लाइफ में अपनी कैसा वो ना अपनी वर्ल्ड में ही जीता रहता है. उसको शादी के बाद भी डोरोथिया से कोई खास मतलब नहीं होता. अब क्या होता है, दे गो ऑन हनीमून इन रोम एंड देयर दे मीट विल लेडिस्लॉ, कैसाबॉन्स यंग कजिन. तो वहाँ पे हनीमून में उसके उससे मिलते हैं रोम में विल लेडिस्लॉ, जो कैसाबॉन का कजिन है, whom कैसाबॉन dislikes. कैसाबॉन डज नॉट लाइक लेडिस्लॉ, फिर भी वो मिलते हैं मैरिज के बाद. डोरोथिया एंड विल बिकम फ्रेंड्स इमीडिएटली. तो जैसे ही डोरोथिया देखती, नेचुरली उसकी एज और ये इसका यंग कजिन लेडिस्लॉ, ये फ्रेंड्स बन जाते हैं. एंड दे लव टू टॉक टू ईच अदर, फिर बातें करना शुरू कर देते हैं. एंड सीम टू हैव अ रियल कनेक्शन, और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हैं. कौन, डोरोथिया एंड लेडिस्लॉ. विच कैसाबॉन इज़ वेरी जेलस ऑफ, और कैसाबॉन को बहुत जलन होती है. एंड द हनीमून टर्न्स आउट टू बी अ डिज़ास्टर. तो वो हनीमून ही उनका स्पॉइल हो जाता है. डोरोथिया feels alone and unwanted as her husband devotes his full time to his studies and none to her. और जो वो कैसाबॉन है वो तो पूरे टाइम अपनी स्टडीज़ में लगा रहता है. तो डोरोथिया बहुत नेग्लेक्टेड फील करती है और उसको बहुत दुख होता है. एनीवे ये एक पार्ट है, अभी हमने इसको होल्ड पे रखा है. अब नाउ वी आर मूविंग टू अनदर स्टोरी. इसमें दूसरी स्टोरी अलग से है, वो है दैट इज़ अबाउट फ्रेड विंसी. तो फ्रेड विंसी कौन है? फ्रेड विंसी इज़ एन irresponsible young man who is used to people providing all the money he needs. तो ये बिगड़ा हुआ लड़का है, irresponsible है, पैसे चाहता है, सबसे पैसे की डिमांड करता है. and he was unable to finish college because he had no aptitude for it. तो वो कॉलेज भी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसमें वो एप्टीट्यूड ही नहीं है. एंड ही हैज़ अ गैम्बलिंग डेट अगेंस्ट हिम. और क्या करता है, वो गैम्बल करता है. तो इस तरह से उसकी वो बहुत अच्छा लड़का नहीं है क्योंकि बहुत केयरलेस है और पैसा मतलब इधर उधर करता है पैसा, और मिसयूज़ करता है पैसे का. एंड विच ही कैन नॉट पे बिकॉज ही हैज़ नो जॉब. जॉब करता नहीं है, पैसे नहीं होते हैं. ही हैज़ कैलेब गार्थ, एन ऑनेस्ट फैमिली मैन, को साइन फॉर द डेट. तो ये क्या करता है, कैलेब गार्थ के साथ में एक कर्जा लेता है. ऑन फ्रेड रिसीव्स मनी फ्रॉम हिज अंकल फेदरस्टोन. अब ये याद रखिए कि यहाँ पे एक और दूसरा नई बात कर रहे हैं हम, नई स्टोरी, जिसमें फ्रेड एंड फेदरस्टोन, मतलब फ्रेड उनका नेफ्यू है, फेदरस्टोन्स के अंकल हैं. एंड विथ विच टू पे द डेट. तो ये क्या करता है, पैसे इधर उधर सब कर्जे में डुबा देता है और फिर अपने अंकल फेदरस्टोन से मांगता है, और वो फेदरस्टोन जो है इसका कर्जा पूरा करते हैं. हाउ एवर ही वेस्ट हिज this money, and the Garth, who have little money, end up having to pay it. Fred is very sad since he believes that this will jeopardy his hopes for Mary. jeopardy मतलब this is the damage. तो वो सोचता है कि ये वो सोचता है कि अब जो उसकी मैरिज होने वाली है मैरी गार्थ से, तो वो किसकी मैरी गार्थ कौन है,
इसकी ओल्डेस्ट डॉटर है किसकी, गार्थ, कैलिब गार्थ की डॉटर, राइट। उससे मैरिज करना चाहता है, तो अब उसको लगता है कि मेरे पास ना पैसे हैं ना जॉब है, तो ये शादी हो नहीं पाएगी। अब ये बात दूसरी है, ये भी होल्ड पे चली गई है स्टोरी। अब हम तीसरी स्टोरी पे मूव करते हैं। तीसरी स्टोरी है, यंग डॉक्टर नेम लिजेट मूव्स टू द टाउन, ही हैज़ न्यू मेथड्स इन मेडिसिन। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके पास मेडिसिन की कुछ नए तरीके हैं, which makes some of the older and more established doctors his enemies। तो वो जो बहुत ऑलरेडी established डॉक्टर्स हैं और कुछ एल्डर्स हैं जिनको इसका लिजिट जो नया डॉक्टर आया है उसकी मेडिसिन्स और उससे थोड़ी जलन भी होती है, और वो पसंद नहीं करते कि ये आकर नई तरह की प्रैक्टिस शुरू करे। चलो, अब यहाँ पे रोजामुंड द विंसीज वेन डॉटर takes to him immediately because he has good connections and is new to Middlemarch। तभी रोजमंड इनके पास अपने भाई को लेके जाती है और डॉक्टर से मिलती है, लिजेट से, एंड ही लाइक्स हर बट डज नॉट प्लान टू मैरी। तो मिडिल जो लिजेट है वो फर्स्ट टाइम में ही इसको, रोजमंड को पसंद करता है, लेकिन बस पसंद करता है, उससे शादी नहीं करना चाहता वो। लेकिन ये जो लड़की है क्या, ही लाइक्स हर बट डज नॉट प्लान टू मैरी, शी बिलीव्स ही इज़ ऑल हर्स। लेकिन ये लड़की इसको फंसाने की कोशिश करती है, एंड विल प्रपोज वेरी शॉर्टली। उसको लगता है लिजिट मुझे पसंद करता है, तो वो उससे उसको प्रपोज करती है। लिजिट टेक्स the controversial step of charging patients for his service. Some people don't like this new way of doing things। तो कुछ लोग उसके इस तरीके को पसंद नहीं करते, बट लिजिट इज़ ऑल्सो एबल टू क्योर सम डिफ़िकल्ट केसेस, सो हिज रेनाउन इज़ मिक्स। तो पर वो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को अच्छे से ट्रीट करता है, और उस तरह से वो उसकी प्रैक्टिस वहाँ पे जम जाती है। अब लिजिट इज़ ड्रॉन टूवर्ड बलस्ट्रोट हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल दो नॉट टू वेल लाइक्ड इन द टाउन। तो लिजिट क्या करता है कि बलस्ट्रोट के पास जाता है, जो एंड देन बलस्ट्रोट एंड हु इज़ वेरी बिजी, हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल दो नॉट टू वेल लाइक्ड इन टाउन। लेकिन वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, हालांकि कुछ लोग, बहुत लोग उसको पसंद नहीं करते। लिजिट जाता है, एंड लिजिट इज़ ऑल्सो compelled to vote with Bulstrode on certain issues, like who to serve as hospital chaplain. He does this to please Bulstrode, though he does not please his conscience। अब यहाँ पे क्या होता है, Furtherstone, an old cranky man who is a relative of Garth and the Vincies is डाइंग। अब यहाँ फर्दरस्टोन की डेथ हो, मतलब वो डेथ बेड पे है, एंड हिज रिलेटिव्स ऑल कम टू विजिट। तो इसलिए लोग आते हैं उससे मिलने, होपिंग दैट ही विल पुट दैम इन हिज विल। क्योंकि फर्दरस्टोन के बच्चे नहीं होते, तो उनको लगता है कि ये विंसी फैमिली सोचती है कि हमारे बच्चों के नाम कर दे, गार्थ फैमिली सोचती है हमारे बच्चों के नाम। सिंस ही हैज़ tons of money and property, Fred has special hopes that he will get money, being as close to the old man as old people can be. Furtherstone's relatives uh, turn up in droves when he is sick। तो वो जब वो बीमार होता है तो फर्दरस्टोन से मिलने बहुत लोग आते हैं, रिलेटिव्स, इस होप में आते हैं कि शायद वो मनी उनके नाम कुछ तो किसी को मिल जाए। He ignores all of them and has Mary Garth, who is his housekeeper, either entertain them or have them go away। He dies and leaves everything to his illegitimate son। लेकिन वो तो क्या करता है कि मिस्टर रिग, जो उसका लेजिटिमेट सन है, उसको पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर जाता है।
तो ये जो फ्रेड विंसी है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अब ये 4 स्टोरीज़ हो गई। अब फिर हम फर्स्ट पे आते हैं। डोरोथिया हमने छोड़ा था यहाँ पे कि डोरोथियाज मैरिजेस फेल, और वी कैन से दैट damaged. Okay, so Dorothea's marriage continues to be very unpleasant thing. Often the dynamic of their marriage does not change, though Casaubon grown more irritable, और ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है वो, and he expects her to devote all her time to making him feel better, सूदिंग हिज इनसिक्योरिटीज़। वो बड़ा इनसिक्योरिटी रहती है उसको, और वो इस तरह का लड़का होता है तो उसको लगता है कि बस डोरोथिया मेरी केयर करे। हाउ एवर ही डज नॉट टेल हर वॉट ही वॉन्ट्स हर टू डू। वो कभी उससे डायरेक्ट कहता नहीं है कि वो उससे क्या चाहता है, लेकिन लिविंग हर कम्प्लीटली कन्फ्यूज अबाउट एवरीथिंग। और वो बेचारी डोरोथिया भी समझ नहीं पाती कि ये मुझसे चाहता क्या है। ना उसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करता, ना उससे वो उसके बिना रह पाता है, तो वो समझ ही नहीं पाती। ही डज़ नॉट एक्सपेक्ट दैट डोरोथिया शुड बी अ ह्यूमन बीइंग विद हर ओन ओपिनियंस एंड आइडियाज़। उसको वो डोरोथिया को सुनना ही नहीं चाहता, उसके कोई आइडिया नहीं लेना चाहता, उसके ओपिनियन नहीं सुनना चाहता। डोरोथिया बिकम्स लेस एंड लेस कंटेंट इन द मैरिज। बेचारी वो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट होती है अपने मैरिज से। अब यहाँ पे क्या होता है, विल लेडिसलॉ मूव्स टू मिडिल मार्च मच टू कैसाबॉन डिसप्लेजर। वो तो वहाँ मिलते हैं, रोम में मिलती है ये विल लेडिसलॉ से। तो एक बार विल लेडिसलॉ मिडिल मार्च आता है एंड मच टू कजिन्स डिसप्लेजर। लेकिन जैसे हमें पता है कि कैसाबॉन उससे जेलस रखता है, उसको पसंद नहीं करता। अब क्या होता है, जब ये मिडिल मार्च आता है तो मिस्टर ब्रूक, डोरोथियाज अंकल, हैज़ बॉट अ न्यूज़पेपर द पायोनियर। तो वो एक न्यूज़पेपर लाते हैं, पायोनियर, एंड हायर्स विल टू वर्क ऑन इट। तो वो उसके अंकल विल को हायर कर लेते हैं। एंड विल एंड मिस्टर ब्रूक आर पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव, विच मीन्स दैट दे आर नॉट वेल लाइक्ड इन नेबरहुड। तो ये दोनों, मिस्टर ब्रूक पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, तो वो और विल लेडिसलॉ ये पॉलिटिकली जब वो होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके नेबरहुड में इनको लोग पसंद नहीं करते। मिस्टर ब्रूक डिसाइड्स टू ट्राई एंड रन फॉर ऑफिस, बट ही इज़ मॉक्ड अ ग्रेट डील एंड गिव अप। तो ये जैसे होता है ना, आपने सुना होगा बीजेपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, इस तरह का ये एक ऑफिस खोल लेते हैं पॉलिटिकल, लेकिन वो फेल हो जाता है और बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और फाइनली वो उस ऑफिस को बंद कर देते हैं। अब विल इज़ वेरी पॉलिटिकली adept though, and should go into politics himself someday। विल पर अभी भी ट्राई करता रहता है और वो एक दिन पॉलिटिक्स में चला जाता है। अब यहाँ पे फिर दूसरी फैमिली में हम मूव करते हैं, लिजिट। दो ही हैज़ नो इंटेंट ऑफ मैरिंग सो सून, प्रपोजेस टू रोजामन, शी एक्सेप्ट। पर विल लिजिट जो है वो रोजामन को पसंद करने लगता है, उसको शादी का प्रपोजल देता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, एंड दे आर टू बी मैरिड। अब वो बस शादी करने वाले। द कपल आर वॉर्न दैट दे आर नॉट सूटेड टू ईच अदर। और लोग कहते हैं कि ये कपल अच्छा नहीं है, इनका कोई मैच नहीं है। रोजामंड हैज़ नो सेंस ऑफ मनी और एंड लाइक्स थिंग्स दैट आर टू एक्सपेंसिव। और वो पैसे बहुत उड़ाती है। एंड हाउ एवर द टू आर मैरिड, शादी तो उनकी हो जाती है दोनों की। एज रोजामंड सून बिगिन स्पेंडिंग मोर देन लिजिट एक्चुअली हैज़ सेव्ड। और लिजिट की सारी सेविंग ख़त्म कर देती है, खूब डिमांड करती है मैरिज के बाद। अब हम फिर कैसेबॉन का पहले वाले कपल पे आते हैं। कैसेबॉन इन बेड कंडीशन। अब यहाँ इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अब इनका कनेक्शन होता है। लिजिट सेज दैट इट इज़ अ हार्ट एलिमेंट। और कैसेबॉन को लिजिट आता है देखने और कहता है कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है एंड कैन किल हिम सडनली। और इस तरह से इतना काम अगर ये करेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, ये खुद को ख़त्म कर लेंगे। Casaubon asks Dorothea to promise to follow his wishes after he dies।
अब यहाँ डोरोथिया से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी इच्छाएं तुम पूरी करना। शी डज़ नॉट प्रॉमिस इमीडिएटली। उसको मालूम है कि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड और बड़ा ही कैसे कहना चाहिए कि बहुत ही अजीब पर्सन है, तो वो कोई प्रॉमिस नहीं करती। बट बिफोर शी कैन गिव हिम हर आंसर ही इज़ डेड। वो कुछ बोलती बात करना चाहती तब तक उसकी कैसाबॉन की डेथ हो जाती है एंड शी इज़ विडोड, और ये विडो हो जाती है। देयर इज़ अ क्लॉज इन कैसाबॉन्स विल अबाउट डोरोथिया नॉट मैरिंग विल और एल्स शी forfeits forfeits हर प्रॉपर्टी। वो कि अगर ये मैरिज करती है विल से तो इसको प्रॉपर्टी का 1% भी नहीं मिलेगा। एंड दिस क्लॉज इज़ अ शॉक एंड डज नॉट स्पीक वेल ऑफ विल्स कैरेक्टर। और ये बहुत शॉक हो जाती है और उसको लगता है कि विल से क्या लेना देना है। डोरथिया गोज टू विजिट हर सिस्टर एंड सर जेम्स एंड देयर न्यू बेबी आर्थर। इसी बीच में इसकी सिस्टर सीलिया और जेम्स चित्तम की शादी हो जाती है, तो इनका एक बेबी भी हो जाता है आर्थर। ये उनसे मिलने जाती है। हाउएवर शी सून फाइंड्स आउट अबाउट द क्लॉज एंड इज़ डीपली ट्रबल्ड बाय इट। तो उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। यहाँ ये सोच भी रही है कि कैसा बॉन मेरा हस्बैंड ऐसे कैसे लिख सकता है मेरे बारे में। अब यहाँ स्टोरी होल्ड हो गई। अब हम फिर से दूसरे नंबर की स्टोरी में जा रहे हैं। फ्रेड इज़ टोल्ड टू गेट अ जॉब बाय his father. Instead, all that he can do is go back and finish school. तो फ्रेड जो है उसको सब कहते हैं कि जॉब करो, है ना। उसके फादर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इंस्टेड ऑल ही कैन डू इज़ गो बैक एंड फिनिश स्कूल। अपनी पढ़ाई पूरी करो, विच मेक्स मैरी अ लिटिल हैप्पियर। तो मैरी खुश हो जाती है। द गार्थ कम अपॉन अ ग्रेट डील ऑफ गुड फर्नीचर। Caleb Garth gets some new properties to manage, which means that the family has some money at last। तो अब इनको थोड़ा कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर ब्रॉडर एंड हिज फैमिली ऑल्सो स्टार्ट डूइंग वेल। डोरोथिया गिव्स, अब यहाँ पे ये बात हो गई। अब फिर डोरोथिया गिव्स देम हर लार्ज पैरिश एंड एक्स्ट्रा इनकम विल अलाउ फेयर ब्रदर टू मैरी। और ये शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, विल इंश्योर दैट दे हैव इनफ मनी टू लिव इन लिटिल बेटर। मीनवाइल लिजिट इज़ डीपली इन डेट। यहाँ पर लिजिट बहुत कर्जे में डूब जाता है। ही कैन नॉट पे बैक हिज लोन्स एंड हिज बिजनेस इज फेलिंग क्विकली। रोजामोन अप्लाइज फॉर हर फादर। वहाँ पे ये बहुत ट्रबल में। यहाँ रोजामोन अप्लाइज टू हर फादर एंड हिज अंकल फॉर लोन्स बट नथिंग सीम्स टू वर्क। यहाँ रोजामोन अपने चाचा से और उनसे अंकल से लेना चाहती है लोन, लेकिन लोन नहीं मिलता। एंड ही इज़ इन a nervous, desperate state and the marriage is not looking too good either। और बेचारा फ्रेड भी सॉरी लिजिट भी बर्बाद हो जाता है। एंड रोजामन begins to hate him because he tries to deny her all the nice expensive things that she likes। अब लिजिट खुल के इसकी डिमांड्स मना कर देता है पूरी करने के लिए। एंड शी ट्रेजर्स हर प्रेशियस थिंग्स मोर दैन शी डज हर हस्बैंड। और ये क्या करती है कि चिढ़ने लगती है इससे। और हु इज़ टू स्ट्रेस टू पे अटेंशन टू हर। ये चाहती है कि लिजिट अभी भी इसके इसके लिए बहुत मतलब इसका सपोर्ट करे। एंड शी बिगिंस कीपिंग कंपनी विथ विल लेडिसलॉ। तो धीरे धीरे ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाती है, लेडिसलॉ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एंड फैंसीज दैट ही लव्स हर। और ऐसे कोशिश करती है कि विल लेडिसलॉ भी उसको प्यार करे और ये भी लेडिसलॉ को प्यार करे। ही डज़ नॉट बट इट कीप्स रोजामुंड कंटेंट फॉर सम टाइम। और इस तरह से उसको कुछ दिन तो अच्छा लगता है,
Will finds out about the clause in Casaubon's will and becomes determined to leave. और उस जब विल को कैसाबॉन के विल के बारे में पता चलता है तो वो सोचता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए. ही सीज डोरोथिया वन लास्ट टाइम. वो डोरोथिया से आखिरी बार मिलता है. दे हैव वेरी हीटेड कन्फ्रंटेशन और बेचारे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं. एंड ही लीव्स एंड गोज़ टू लंदन टू फाइंड अनदर जॉब. शी स्टेज एंड ट्राइज नॉट टू थिंक ऑफ हिम टू ऑफन. अब ये लोग एक तरह से अलग अलग हो गए. अब आप इधर फिर आते हैं. फ्रेड डज नॉट वांट टू गो इनटू द क्लर्जी एंड ही हैज़ फेयर ब्रदर स्पीक टू मैरी फॉर हिम. और फिर वो इससे शादी करता है. एंड देन मैरी सेज दैट शी इज़ डिटरमिन्ड टू मैरी फ्रेड. तो यहाँ फेयर ब्रदर मैरी को प्रपोज करता है. मैरी कहती है नहीं, मैं तो फ्रेड के साथ फिक्स हूँ. एंड इफ़ ही विल मेक गुड ऑन हिज प्रॉमिस टू गेट अ जॉब बट सेज ही शुड नॉट बी अ प्रीचर. वो कहती है फ्रेड से कि तुम एक अच्छा जॉब करो, तुम पर प्रीचर मत बनना. अगर तुम प्रीचर बनोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी. Fred decides quite by accident to become an assistant to Mary's father. और ये मैरी के फादर का असिस्टेंट बन जाता है. His parents are not very pleased by this, but this is all he wants to do or has any aptitude for. ये उनका असिस्टेंट बन जाता है और रहने लगता है. Bulstrode buys stone coat from मिस रिक, जो उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है. तो वो क्या करता है कि हु डिसाइड्स टू लीव टाउन एंड गो बैक टू द कोस्ट. और बलस्टोर चाहता है कि वो मिडिल मार्च छोड़कर चले जाए. बलस्टोर मीट्स मिस्टर रेफल्स, अ मैन फ्रॉम हिज पास. तो ये मिस्टर रेफल्स से मिलता है एंड वेरी मच बाय एक्सीडेंट. तो वो एक्सीडेंटली उससे मिलता है. मिस्टर रेफल्स was in a questionable businesses of selling stone goods and will blackmail Bulstrode if he does not get money. तो यहाँ रेफल्स का बस यही रेफल्स का जो वो है रोल है यहाँ, यह है कि वो बलस्टोड को के पास के बारे में सब जानता है और उसको ब्लैकमेल करता है. और वो कहता है रेफल्स ऑल्सो मैरिड रिक्स मदर. और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा है क्योंकि वो जो रिक्स का इलेजिटिमेट चाइल्ड है उससे रेफल्स शादी कर लेता है. बट रिक वुड नॉट गिव हिम एनी मनी. और लेकिन जो रिग है वो उसको मनी नहीं देता. एंड टोल्ड हिम टू लीव इमीडिएटली. तो वो रेफल से कहता है तुरंत यहाँ से निकल जाओ. और रिग कम्स अगैन एंड अगैन टू हॉन्ट बलस्टोड. परंतु अब ये रिग जो उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड है वो बलस्टोड के पास आता है, उसको परेशान करता है. बलस्टोड पेज हिम टू लीव बट रेफल्स कम्स बैक एंड ही इज़ वेरी इल. अब रेफल्स टेल्स मिस्टर गार्थ अबाउट बलस्टोड पास. वो बलस्टोड के बारे में सब बता देता है. बट मिस्टर गार्थ इज़ टू स्क्रूपलस टू spread this knowledge around, so Bulstrode thinks that he is safe. अब मिस्टर गार्थ बहुत अच्छे होते हैं. अब रेफल्स डाइज एट बलस्टोड हाउस एंड अंडर legit care. This does not look good, but Raffles died of natural causes relating to alcoholism. वो बहुत पीता है, ड्रिंक करता है. Bulstrode offers legit a large loan to keep him from going bankrupt. Legit takes it. अब legit अलग परेशान है तो वो बलस्टोर से पैसे ले लेता है. दो it looks really bad like a bribe. Bellstore also found out that he had married Will Ladislaw's grandmother and had deprived Will of his rightful inheritance. He tries to repent by offering Will a good deal of money, but Will refuses, which is good. अब यहाँ Will comes back, but Dorothea catches him with Rosamond in what. तो यहाँ ये विल वापस लंदन आता है और वो देखता है कि
इस बार रोजामुंड विल के साथ है, तो डोरोथिया को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड होती है और एंग्री विथ विल, वो विल से नाराज़ होती है. विल इन टर्न्स एंग्री विथ रोजामुंड फॉर मेकिंग थिंग्स लुक लाइक ही लव्ड हर व्हेन ही डिड नॉट एट ऑल. परंतु इसको बहुत गुस्सा आता है विल को रोजामुंड के ऊपर कि तुम इस तरह से क्यों प्रीटेंड करती हो, मैं मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है. विल डिबेट्स वेदर टू गो और सी हर और नॉट. फिर इनकी थोड़ी हॉट टॉक होती है कि हम यहाँ पर साथ में नहीं रहेंगे, मैं जाऊँ क्या, इस तरह से पूछता है. एंड सर जेम्स वॉन्ट्स हिम about the neighborhood again, thinking that he is no good and he needs to protect his sister-in-law. Raffles told his story to a few more people than just Caleb Garth. The story gets around to middle March. यहाँ पे ये जो रेफल्स है ये बस रोड के बारे में ख़राब बातें सबको बताते हैं. स्टार्ट लुकिंग वेरी बैड फॉर बस रोड. तो बस रोड को लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं. लेजिट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ दिस, क्योंकि अब लेजिट ने उससे पैसे ले लिया है. एज द लोन इज़ थॉट ऑफ एज some kind of bribe for being quiet about the circumstances regarding Raffles' death. Dorothea, however, believes that Legit is innocent and Fairbrother and a few others convince him to stay. In time, public opinion is not so much against him, though his practice continues to diminish. Bulstrode, however, has to leave Middlemarch because the scandal is so bad, and his wife is very sorry because she had no idea that his past was so dirty, and she is very good person and makes up her mind to stay with him no matter what. तो पर उसकी वाइफ अच्छी रहती है, वो बल्स्ट्रोड का साथ देती है. एंड बल्स्ट्रोड he leaves in disgrace, though Legit who is innocent and stays behind. और यहाँ पे लेजिट जो होता है वो इनोसेंट होता है. अब यहाँ फ्रेड की बात फिर से आती है. फ्रेड इज़ डूइंग वेल इन हिज वर्क. अब फ्रेड बहुत अच्छा हो गया है. फॉर गार्थ मिसेस बल्स्ट्रोड लीव्स हिम द मैनेजमेंट टू स्टोन कोट. तो वो एक मैनेजर बन जाता है समझो. एंड ही गेट्स लिव देयर इन ही टेक्स केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ही एंड मैरी बिकम एंगेज. अब उनकी शादी हो जाती है. दो फेयरब्रदर ऑल्सो विशेस टू मैरी हर, पर वो मना कर देती है. फेयरब्रदर को मैरी मना कर देती है क्योंकि वो फ्रेड के साथ एंगेज है. बट देयर एंगेजमेंट विल बी लॉन्ग while Fred continues to prove himself through work and saves money for marriage. और फिर अपन अच्छा हो जाता है वो. Dorothea bails out Legit with money to pay Bulstrode back. और डोरोथिया यहाँ पे लेजिट का पैसा चुका देती है. फाइनली विल कम्स टू सी हर, दो शी कैन नॉट मैरी हिम और एल्स लूज हर प्रॉपर्टी. परंतु जैसे कैसमॉन उसको लिख के गया था कि अगर ये विल से शादी करेगी डोरोथिया तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे. तो शी डिसाइड शी डज़ नॉट वांट टू लूज़ हिम, कि उसको पैसे नहीं चाहिए और वो विल से शादी कर लेती है. डोरोथिया गिव्स अप ऑल ऑफ कैसमॉन्स मनी एंड प्रॉपर्टी टू मैरी विल. और इन दोनों की शादी हो जाती है. सीलिया एंड सर जेम्स आर शॉक्ड दो शी हैज़ मेड द राइट डिसीजन. और उनकी भी शादी हो जाती है. सर जेम्स कंटिन्यूज टू थिंक बैडली ऑफ द मैरिज, बट विल एंड डोरोथिया गो टू लंदन एंड वो लंदन चले जाते हैं. विल इज़ इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड दे आर वेरी हैप्पी. और इस तरह से स्टोरी एंड हो जाती है. मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करोगे क्योंकि थोड़ी सी नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन मैं इसको फिर से बनाऊंगी अभी इस पे एक वीडियो और प्रॉपरली वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, थैंक यू.